Yes. So what is the answer? L is repeated 2 times. So what is the answer? 9 factorial by 4 factorial into 2. Yes, 9 factorial by 4 factorial into 2 factorial. These many words can be formed. Problem number 15. These many words can be formed. Now, first bit. In how many of them vowels occupy the even positions? Vowels occupy even positions. So first of all, let us see vowels. So vowels are A, and consonants are L, H, B, D. 5 consonants and 4 vowels. Vowels occupy even position. That means L, H, B, D. Consonants will occupy the odd positions. That means vowels can occupy these 4 positions. Vowels के लिए ये 4 position available हैं, so that vowel will occupy even position. और कोई condition है क्या जिसमें vowel will occupy even position? हो रहा है कुछ ऐसा जिसमें vowels will occupy even position? नहीं, ऐसा नहीं होगा. मान लो हमने L ले लिया, H ले लिया. सो या तो vowel सेकेंड पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगी, दैट इज इवन पोजीशन, या फिर फोर्थ पोजीशन पे. लेकिन यदि आप फोर्थ पोजीशन पे भेजोगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी. 4, 6 एंड देन 8. आपके 3 vowel तो इवन पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, but the fourth vowel cannot occupy any position. All the vowels should occupy even position. That means you have only one option, and that is written here. Yes, what is the answer for this situation? Can you guess? Can you tell me what is the answer for this situation? 5 factorial by 2 factorial. ओके, सो पहले हम लोग कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. तो कॉन्सोनेंट्स का हो गया 5 फैक्टोरियल एंड L इज रिपीटेड, सो 2 फैक्टोरियल. फाइन. और ए यस, दैट विल बी 1. हम लोग बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल. ए करेक्ट. तो इसमें हो गए 4 लेटर्स, सो 4 फैक्टोरियल, and A is repeated 4 times, so divided by 4 factorial. So that is first bit. Now second bit. In how many of them both L do not come together? Both L do not come together. Yes, do not come together. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? यदि ये फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सर कम टुगेदर, दे डू कम टुगेदर से टोटल से डू कम टुगेदर माइनस कर देंगे. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच वी हैव ऑलरेडी फाउंड माइनस कर देंगे. बोथ एल कम टुगेदर. That will be our answer, that both L do not come together. तो टोटल हमारे पास आंसर है. अभी हम लोग both L come together कर देते हैं. So L together means बॉक्स में रख देंगे. वेरी गुड, हमने रख दिया. Then H, A, B, A, D. So leaving 2L, remaining letters हमने लिख दिए. Yes, बॉक्स को हम लोग 1 काउंट करेंगे. सो हाउ मेनी लेटर्स वी हैव? 8 लेटर्स. बोलो. 8. यस. खुशप्रीत, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? Sir, 8. 8.
सो 8 में कौन रिपीट हो रहा है? इन 8 लेटर विच लेटर इज रिपीटेड? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स, सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? Sir, A 4 times. ए 4 टाइम्स। हम लोग ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे, ब्लॉक के अंदर में 2 एल हैं लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, ब्लॉक के बाहर। सो ए रिपीटेड 4 टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब हम लोग ब्लॉक के अंदर जाएंगे, सो ब्लॉक के अंदर में 2 लेटर्स आर देयर, सो 2 फैक्टोरियल, but L is repeated 2 times, so again divided by 2 factorial. And so our final answer will be 9 factorial by 4 factorial into 2 factorial minus 8 factorial by 4 factorial. This will be the final answer. Total में से हम लोग माइनस कर देंगे, फाइन, 8 factorial by 4 factorial. So that was problem number 15. Next चलते हैं problem number 16, and here it is. Problem number 16. So the word is given independence. Yes, please count the number of letters and which letter is repeated how many times. Number of letters, total number of letters. ठीक है? Then which letter is repeated how many times? So first of all, how many number of letters are there? 12. 12 लिखिए, वेरी गुड, लिखिए 12 लिखिए। अब बताइए कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? Sir, E 4 times, N 3 times. E 4 times, तो लिख लेंगे E repeated 4 times. N? Sir, N 3 times. N 3 times. और D? D 2 times. 2 times. और कोई रिपीट हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. ओके, सो फिर तो ये हमारा आंसर हो गया 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बिट्स में जाएंगे। सो फर्स्ट बिट, वर्ड्स स्टार्ट्स विथ P, वर्ड्स स्टार्ट विथ P। सो देखो हमारा जो ये पोजीशन है ये फिक्स हो गया, और जो पोजीशन फिक्स हो जाता है हम उसमें 1 ऑप्शन फिलअप करते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को अब भूल जाना है, P को रिमूव कर देना है। यस, सो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर द रिमेनिंग लेटर्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? Sir, 11 factorial upon 4 factorial into 3 factorial into 2 factorial. Yes, 11 फैक्टोरियल, बिकॉज पहले हमारे पास टोटल 12 थे। जैसा मैंने बोला P को आपको रिमूव कर देना है क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, अब वो अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो टोटल वी हैव 11 लेटर्स, सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नाउ नो नंबर इज रिड्यूस्ड फॉर देम क्योंकि हमने सिर्फ P को रिमूव किया है। सो 4 फैक्टोरियल, 3 factorial, 2 factorial, that is the answer. Second bit, do all the vowels always come together? Vowels always come together, so please put them in a box. All the vowels will be kept in a box. हमने इनको बॉक्स में रख दिया। Now other letters will be written outside. So N, D, P, N, D, N, C चेक कर लेंगे। इधर हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So total हमारे 12 सही है। Yes, please tell me what is the answer. Sir, 8 factorial into 5 factorial upon 4 factorial.
8 factorial into 5 factorial upon 4 factorial. This is the final answer. Vowels never occur together. Yes, never का हम लोग जानते हैं ना, never में हम क्या करते हैं, never together में क्या करते हैं? total minus together. Yes, total minus together. तो आपका जो total का आंसर था और together उसको माइनस कर दीजिए. ये आपका total का आंसर था जो ओरिजिनली हमने फाइंड किया था without any bits, without any condition. So 12 factorial by 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial minus. When they are together, so 8 factorial, ठीक है. So ये together का आंसर था, दोनों माइनस कर देंगे. That will be the answer of the third bit. Now fourth bit. Do the words begin with I? Begin with I and end in P. What is the answer? Begin with I, end with in P. Nicholas? 10 factorial. 10 factorial upon 4 factorial into 3 factorial into 2. Yes, sir. बोले कोई आंसर नहीं आ रहा है निकलेश. नहीं सर, प्रीवियस क्लास अटेंड ही नहीं किया तो ओहो. नहीं. आज मैं सारा वीडियो दे देता हूँ. ठीक है सर. हाँ, सारा वीडियो देख लो अच्छे से फिर बताना. हाँ, कौन आंसर दे रहा था? यस, कौन आंसर दे रहे थे? सर स्पंदन. हाँ बोलो, आंसर बोलो. सर 10 factorial upon 4 factorial into 3 factorial into 2 factorial. 10 factorial, 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial. भाई चेक कर लो, is it the correct one? Begin with I and end in P. बोलिए. करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट. ओके, आपने दो लेटर्स के पोजीशन को फिक्स कर दिया है. जिस लेटर का पोजीशन फिक्स हो गया अब वो रिमूव हो जाएगा. इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द अरेंजमेंट. सो आई को आप भूल जाइए, पी को अब आप भूल जाइए, एंड देन वॉट एवर लेटर्स आर रिमेनिंग, देन यू विल मेक द number of words. So that is the answer. 10 factorial by 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial. Next. So that was fourth bit. Next चलते हैं. Next problem number 17 और इसका आंसर मुझे चाहिए. मुझे इसका आंसर चाहिए. स्नेहा, सुजल और आयस्कान, तीन लोगों में से किसी से मुझे ये आंसर चाहिए. सुजल, स्नेहा, आयस्कान. रिमेनिंग और लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तीनों बिट्स. पहले मुझे इन तीनों को अभी मैं मौका देता हूं. लेट मी सी दे कैन सॉल्व, दे अंडरस्टूड और नॉट. यस, स्नेहा, सुजल एंड आयस्कान, स्टार्ट कीजिए. फर्स्ट बिट. इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड? पहले तो इसका आंसर बोलिए. टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ये क्या आंसर होगा? नो बिट्स. टोटल 12 factorial by 2 factorial. ये हमारा फर्स्ट बिट का आंसर है. ये टोटल का आंसर नहीं है. टोटल का आंसर 10 factorial by 2 factorial. by ठीक है 2 सर. factorial होगा. मैंने टोटल था, नो कंडीशन. हाँ सर. ओके. Oh, sorry, sir. Yes. First bit का आंसर हो. हाँ, तो ये 12 टोटल है. 12. T is repeated 2 times. T is repeated 2 times. So 12 factorial by 2 factorial.
फर्स्ट बिट का आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्टार्ट होगा P से और एंड होगा S से। तो जो लेटर आपको ऐसे कंडीशन में फिक्स्ड है तो वो फिक्स हो गया, अब वो अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो रिमूव दोज 2 लेटर्स। सो ऑब्वियसली 12 टोटल थे, 2 रिमूव हो गए, दैट मींस 10 आर लेफ्ट। 10 फैक्टोरियल, और कौन रिपीट हो रहा है? T 2 times, so 10 factorial by 2 factorial. Next, second bit. Vowels are all together. Ayskant, vowels are together. क्या आंसर होगा? Sir, 8 factorial. Vowels are together 8 factorial. That much only? Sir, by 2, sir. By 2 factorial. चेक करेंगे क्या ये करेक्ट आंसर है? नो सर। नो, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या है करेक्ट आंसर? 8 factorial to 5 factorial by 2 factorial. into 120. अब देख लीजिए क्या ये सही है, और सब लोग चेक कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so box will be counted as 1. Vowels are together. Whatever vowels are present in the word permutation, they are kept here. So all are present. So it is kept in a box. The box will be counted as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 factorial. T is repeated 2 times, so divided by 2 factorial. अब हम बॉक्स के अंदर में जाएंगे, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। पहले बाहर का आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, अब बॉक्स के अंदर जाएंगे। सो बॉक्स में देयर आर टोटल 5 लेटर्स, सो 5 फैक्टोरियल एंड नथिंग इज रिपीटेड, सो नो डिवीजन। दिस इज द आंसर फॉर second bit. Vowels are together. Now third bit. 4 letters are there. 4 letters are there between P and S. Now please tell me, P is fixed at first position and S is fixed at this position, then tell me total how many arrangements are possible in this situation? Tell me. इस सिचुएशन में टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 10 factorial 10 by 2 factorial by factorial. 2 factorial. Yes, ये हमने पहले भी देखा था in the first bit. First bit is also telling same. First bit is only telling that P starting में है और S ending में है। मैंने क्या बोला? P starting में है और S 6th पोजीशन पे है। So no problem, पोजीशन तो पोजीशन है, हमने फिक्स किया। So 10 factorial by 2 factorial. अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सोच समझकर बताइएगा। अब सुनिए, अब देखिए P अब पोजीशन शिफ्ट करेगा। P विल बी नाउ एट सेकेंड पोजीशन, S विल बी एट द 7th पोजीशन। तो पहले हमारे पास S 6 पोजीशन पे था, अब 7 पोजीशन पे है, शिफ्टिंग हो गई। सच अ वे दैट स्टिल P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं। तो ये मैंने आपको एक सिचुएशन दिया, ये मैंने आपको सेकंड केस दिया। अब इसी तरह से शिफ्टिंग करते जाइए। तो 2 केस मैंने बता दिया आपको,
कैन यू टेल मी टोटल कितने केसेस बनेंगे? टोटल कितने केसेस बनेंगे? सोचिए, यही सर सिर्फ 7 करते जाना है। P at the third position, S at the 8th position. P एक स्टेप आगे बढ़ेगा, S भी एक स्टेप उधर आगे की तरफ जाएगा, राइट की तरफ शिफ्टिंग होते जाएगी, such that between them there has to be 4 letters always. So सर two 14 cases will be formed. 14 Okay, और लोग बताइए। Total how many cases will be formed? Sir, 12. So 14. ओके, सो देखिए, आप लोग जो 14 बोल रहे हैं शायद सही है, बट देख लीजिए टोटल 7 केसेस ऐसे बनेंगे। S is at 6th position, then 7th position, then 8th position, then 9th position, like that 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे सिचुएशन, ऐसे केसेस बनेंगे। 14 आंसर कैसे आया? सर फिर S मतलब P S के जगह आ जाएगा और S P के जगह तब भी तो 4 आएंगे उनके अंदर, उनके बीच में। Reverse of So that means they will interchange their position. P and places. they can interchange their position. That means 7 cases बनेंगे और वो फिर से डबल हो जाएंगे, क्योंकि P और S आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। So yes, here is the answer. 10 factorial by 2 factorial into 14. These many arrangements, these many words are possible. किसी को कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में? Yes, sir. Sir, वो 14 वाला. 14 वाला देखो, ये देखो एस के पोजीशन को देखो, एस अभी कौन से पोजीशन पे है? ये Sir, 6th. 6। अब अपने फिंगर्स पे काउंट करो, स्टार्टिंग में 6 पोजीशन पे है, एक शिफ्टिंग होगा चला जाएगा 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 एंड 12। कितने केसेस बन गए? Sir, 7. 7। 12 के बाद तो नहीं जा सकता है, 12 पोजीशन है, 7। P पहले था, S बाद में था, अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। अब S पहले हो जाएगा, P बाद में हो जाएगा, एंड अगेन 7 कंडीशंस बन जाएंगे सेम उसी तरह से। Yes, sir. Yes, sir. 7 P पहले था, S और 7 S पहले था, तो 7 + 7 14 ऐसे केसेस हमारे बन गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड रैंक प्रॉब्लम या डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, मदर, जेनिथ आपको सॉल्व करना है, फिर मैं सुरीति बताऊंगा और IIT JEE आपको सॉल्व करना है। तो रूल आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा। सो ध्यान से सुनिए, पहले ये प्रॉब्लम है क्या। सो सी दैट रैंक ऑफ द वर्ड क्या होता है। रैंक ऑफ द वर्ड, इट द मीनिंग इज पोजीशन ऑफ द वर्ड, position of the word in the dictionary, position of the word in the dictionary if only the letters of the word are present in the dictionary. Only those letters are present which are present in the given word. जैसे
Right now the mother, the word is given is mother. तो आपको ये समझना है कि डिक्शनरी में और कोई लेटर्स नहीं है, ओनली द लेटर्स आर E, H, M, O, R, T. Only these letters are present and obviously order यही होगा. सबसे पहले डिक्शनरी में लेटर E के वर्ड्स होंगे, देन H के वर्ड्स होंगे, M के होंगे, O के होंगे, R के होंगे और T के होंगे. और कोई भी वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी या कोई भी वर्ड बनाया जाएगा वो इन्हीं लेटर्स से बनाया जाएगा. दैट काइंड ऑफ डिक्शनरी, if it is there, then what will be the position of the word mother? Mother will come at which position? 100 position or 212 position, 356 position. What will be the position of the word mother in that dictionary which is using only these letters E, H, M, O, R, T? Now, is question clear to everyone? सर थोड़ा दोबारा समझा दीजिए. देखो डिक्शनरी में क्या होता है, नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, लेटर्स होते हैं A to Z, है ना? यस. और डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड बनेगा लेटर A से. फाइन, A से जितना भी वर्ड बन सकता है, देन B से बनेगा, लाइक दैट. लास्ट में फिर Z लेटर से जितने भी वर्ड बनते हैं. इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें क्या करना है, आपको ये सारे लेटर्स अवेलेबल नहीं है, A to Z अवेलेबल नहीं है. वही लेटर्स अवेलेबल हैं जो गिवन वर्ड में है. जैसे राइट नाउ हमें मदर वर्ड दिया गया है, तो मदर वर्ड में कौन कौन से लेटर्स हैं? सर EHMORT. MOTHER, ये लेटर्स हैं. यस सर. हाँ, तो बस डिक्शनरी में अब यही लेटर्स हैं और कोई लेटर्स नहीं है, निकाल दिए गए. और सारे लेटर्स के वर्ड निकाल दिए गए, बस यही लेटर्स अवेलेबल है. अब समझ में आया डिक्शनरी कैसा डिक्शनरी है ये? यस सर. हाँ, तो ऐसे डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो कहीं ना कहीं मदर का भी पोजीशन आएगा, मदर वर्ड भी कहीं ना कहीं बनेगा. यस सर. तो मदर का जो पोजीशन होगा उस डिक्शनरी में, दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ द वर्ड. फाइन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, तो इसको आप देखेंगे. सो प्लीज राइट डाउन, और जैसा बोला गया है वैसा ही फॉलो करना है. इधर उधर किए तो फिर गड़बड़ा जाएगा. तो अच्छे से सुनिएगा. मदर, सबसे पहले अरेंज द लेटर्स एज इन डिक्शनरी. स्टेप नंबर 1, मैं इसको अरेंज करूंगा. सो डिक्शनरी में प्रेजेंट लेटर्स में से ई सबसे पहले आएगा, देन एच, एम, ओ, आर, टी. आर पहले आएगा, मैंने हाँ पहले ही लिखा था, ठीक है. आर पहले आएगा. डन. स्टेप नंबर 1 डन. स्टेप नंबर 2, इफ द लेटर टेकन इन ऑर्डर. चलिए लेटर लीजिए इन द ऑर्डर. तो पहला हमने लिया लेटर ई, ऑब्वियसली ऑर्डर में लेना है. ई हमने लिया. अब हमें पता करना है पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3. So point number 2 says does not match. So yes, it is not matching at that position. First position में हमारे वर्ड में M है और we are having E. मैच किया क्या? पहला पोजीशन मैच किया? नो सर. नो. नो सर. तो क्या करना है? मैच नहीं करेगा तो क्या करना है?
बोलो बोलो, लिखा हुआ है, बोलो। वर्ड फॉर्म, व्हाट्स करना है मैंने? वर्ड फॉर्मेशन फॉर द रिमेनिंग पोजीशन। तो अब देखो रिमेनिंग पोजीशन, टोटल लेंथ है 6, तो रिमेनिंग पोजीशन हो गया 1 2 3 4 5। पोजीशन लिखा मैंने, और अब मैं अवेलेबल लेटर्स लिखूंगा। तो अवेलेबल लेटर्स है HMORT, ठीक है। 5 पोजीशंस, 5 लेटर्स। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 5 लेटर्स? जल्दी से बोलिए, 5 लेटर्स से कितने वर्ड बन सकते हैं? 5 factorial. Yes, Sir, that is understood. 120. That is understood. Taken all at a time. So कितने वर्ड्स बन सकते हैं? So 5 factorial, लिख लीजिए 5 factorial. So now all the words are formed. So letter E के बाद लेटर आएगा H. H. So again 5 places which letters are available, EMORT. So 5 factorial. H के बाद कौन सा लेटर आएगा? M. सेम पोजीशन, अभी पोजीशन चेंज नहीं करना है, वी आर एट द फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन पे कंटिन्यू कीजिए। H के बाद कौन सा लेटर आएगा? M. यस, राइट डाउन M. नाउ पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। 3 बिकॉज मैच कर गया। राइट नाउ वी हैव टेकन लेटर M, और मदर ऑल्सो हैज लेटर M। मैच कर गया, दोनों पोजीशन मैच कर गया। तो फिर मैच कर गया तो क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। इफ द लेटर मैचेस देन कट द लेटर। कट द लेटर मतलब ये जो आपने यहां लिखा है, ये डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखा है, यहां कट कीजिए। अब इस लेटर को कट कर दीजिए, इस लेटर को कट कीजिए। फिर क्या बोलता है? मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। मतलब अब हम लोग सेकेंड पोजीशन, अब फर्स्ट पोजीशन को भूल जाइए। नाउ वी आर एट द सेकेंड पोजीशन। रीसेट, रीसेट का मतलब है हम लोग पहले E लिए थे, फिर H लिए थे, देन M लिए थे। अब रीसेट कर दीजिए। रीसेट का मतलब अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब फ्रॉम द बिगिनिंग फिर से आ जाएगा E। रीसेट, रीसेट का मतलब फिर से स्टार्टिंग में जाइए एंड रिपीट द प्रोसेस, बट दिस टाइम द प्रोसेस विल बी रिपीटेड एट द सेकेंड पोजीशन। सो ME, हमारे पास है MO, वर्ड में है MO, लेकिन यहां पर है ME, डज नॉट मैच। सेकेंड पोजीशन मतलब सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। पहले मुझे ये बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. So step number 2, word formation. Which letters are available? M तो ये फिक्स हो गया, M is fixed at this position, और आपने E यहां रखा है। That means remaining 4 are HORT, 4 factorial. कंटिन्यू एट द सेम पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे कंटिन्यू। E के बाद आएगा H, EORT, 4 फैक्टोरियल। H के बाद आएगा कौन सा लेटर आएगा? H के बाद O। याद रखना M को कट कर दिया गया है, इसीलिए M कट हो गया, M यूज हो गया है, M इज कट। तो H के बाद अब आएगा O। सो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। 3 क्यों मैच कर गया। MO ऑल्सो वी हैव MO। तो क्या करना है? कट बिगिनिंग से मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, मतलब अब थर्ड पोजीशन में, एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो MO, then we will get E. So this will be 3 factorial MO H
again 3 factorial, MO R again 3 factorial, MO R के बाद आ जाएगा T, T मैच कर गया, सो कैंसल T, MOT 3 पोजीशन फिक्स हो गया, 4th पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, MOT from the beginning, E 2 position 2 factorial, MOT H, E के बाद H आएगा, मैच कर गया मतलब कट। अब नेक्स्ट पोजीशन फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो आएगा E, मैच कर गया, E कट, और फिर लास्ट पोजीशन R, ये पूरा का पूरा हमारा मैच कर गया। तो दिस विल बी काउंटेड एज वन लेटर, दिस विल बी काउंटेड एज वन लेटर। सो 120, 120, 24, 24, 6, 6, 6, 2, 1. Tell me total what is the sum? Sir, 309. 309. Please check करेंगे, are we getting this? Yes, sir. 309. So this is called rank of the word mother. कोई डाउट है, कुछ डिस्कस सर आते हैं तो बोलेंगे। सर वो MOH के बाद वो MOR आया, तो वो R तो R के साथ मैच कर रहा है, तो नो 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 नो, कहाँ मैच कर रहा है? थर्ड पोजीशन पे, थर्ड MOR, थर्ड पोजीशन पे T है और हमारा R आया है, तो कैसे मैच करेगा? ओहो ओहो, यस 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 सर, हाँ, हमारे वर्ड में उसी पोजीशन पे। ठीक है ठीक है, चलिए एक मैंने सॉल्व किया, अब चलिए जेनित सॉल्व करके दिखाइए। Sir, यस, sir, is the answer 614? 614. Please check the answer. Anyone getting 614? Sir, 616. 616. Sir, Yes, सर ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है ना? करना पड़ेगा ना, यही प्रोसेस ही है, हाँ सर। इसीलिए मैंने आपको पूरा लिख कर बता दिया ना कि आप एक ही स्टेप को बार बार फॉलो करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। The 620. भाई बताओ कितना आ रहा है? 600 प्लस 12, 600 प्लस 12 प्लस 211। देख लो भाई, मेरा आंसर तो 616 आ रहा है।
600. Yes, sir. Okay, yes, that is the correct answer. 616. Now इस बात को ध्यान रखना, आपके 6 लेटर्स हैं, जब 4 मैच कर जाएंगे ना, देखो जेनी मैच कर गया तो लास्ट के 2 पोजीशन खुद से लिख दो। लास्ट के 2 पोजीशन ये आएगा HT और फिर इसी को इंटरचेंज कर दो तो ये बन जाएगा TH। ये लास्ट के 2 मैनुअली लिख देना। फाइन, सो दैट इज 616। चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सुरीति, किसी को कोई डिस्कस करना है, कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, चलिए सुरीति केयरफुल, सुरीति में केयरफुल रहेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। देखो सीख लो, यदि किसी को कोई भी डाउट आ रही है तो 2 प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करूंगा, आप इसमें सीख लीजिए। सुरीति, तो सबसे पहले जैसे डिक्शनरी में आएगा IIRSTU, IIRSTU। नाउ जिसका ये करेक्ट है आगे फिर बन जाएगा, सॉरी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 मिनट। यस, नाउ प्लीज चेक, जिसका ये 2 लाइन करेक्ट होगा फिर आगे क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए अब क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। सर आंसर होगा शायद सर 236। आंसर होगा 236। ये किसका आंसर है, बोलो। सर स्पंदन। स्पंदन बोल रहा है आंसर है 236। एनीबॉडी एल्स? ओके, पहले मैं ये 2 स्टेप पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला लेटर हमने आई लिया है, तो हमारे पास these 5 आर लेफ्ट, तो हमने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। बहुत लोग क्या होता है, सर ये आई ले लिए अब ये आई लेंगे, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, दोनों आई एक ही है। तो आई आपने पहले पोजीशन पे रख दिया, आई का काम खत्म, ये और वो नहीं, दोनों तो एक ही आई है, तो कैसे अलग अलग कैसे होगा, तो अलग अलग है ही नहीं तो ट्रीट कैसे करेंगे। तो आई के बाद अब नेक्स्ट लेटर आएगा, ये आई वो आई नहीं होगा, तो आई के बाद नेक्स्ट लेटर है आर, दैट्स व्हाई आर हैज कम हियर। तो 5 पोजीशन, क्योंकि टोटल लेंथ है 6, 5 पोजीशन, लेकिन केयरफुल 5 पोजीशन 5 लेटर्स, लेकिन उनमें से 2 लेटर आई हो रहे हैं रिपीटेड, दैट्स व्हाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2i आर रिपीटेड, सो 2 फैक्टोरियल। आई हो गया, आर हो गया, देन एस, और इसके बाद नॉर्मल है, एस मैच कर जाएगा, नो नीड टू फॉर्म द वर्ड। एस आएगा मैच कर जाएगा, तो नो नीड टू फॉर्म द वर्ड। एस के बाद आई, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड। 4 फैक्टोरियल, यस 236 इज द करेक्ट आंसर। और किसी का आया आंसर? वेरी गुड, 236 इज द करेक्ट आंसर। यस, अब मैंने क्या बताया था, व्हेन आपके सारे लेटर्स मैच कर गए और ओनली 2 लेटर्स आर लेफ्ट, तब आप राइट द वर्ड। अब देखो वर्ड को हम लिख देंगे, तो पहले आएगा आई और बाद में आएगा टी, तो लिखेंगे आई एंड टी।
और नेक्स्ट लेटर में, नेक्स्ट वर्ड में बस इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। आई टी था, ये बन जाएगा टी आई, यदि जरूरत है तो यस हमें जरूरत है, बिकॉज सुरीति इज कमिंग इन द एंड। तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। सो 120 प्लस 60 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, देखो आ जाना चाहिए 236। 80 200 204 और इधर से हो गया 24 8, नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ जा रहा है 236 236। ओके, बोलते हो, कोई डाउट है क्या? सर ओके चलिए लास्ट, ठीक है। अब जिसका डाउट है क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं बोल सकता हूं कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं श्योर शॉर्ट, एकदम एग्जाम में आ सकता है। कुछ सेक्शंस होते हैं कि ये श्योर शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, तो वो ऐसा क्वेश्चन है। रैंक ऑफ द वर्ड एकदम मतलब बहुत ही ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लिया, डिटेल में पढ़ाया कि इसमें कोई डाउट ना रहे। सो नेक्स्ट वर्ड यू हैव IIT JEE, प्लीज फाइंड द रैंक, डू इट। एंड टी हो गया, 6 हो गए, ठीक है। EE IIJT, सबसे पहले E, फाइन, सबसे पहले E, सो टोटल लेंथ 6 है, सो 1 2 3 4 5। नाउ EIIJT, so 5 factorial by 2 factorial, then E के बाद आ जाएगा लेटर I। I आ गया मतलब सर थोड़ा गलत बोल दिया आंसर। क्या आंसर है बोलो? 95। सर 96। सर 96। भाई चेक कर लो 95 करेक्ट या 96। नाउ रीसेट 1 2 3 4, so EIJT, so that is 4 factorial। then I के बाद फिर से आ जाएगा E के बाद I, that is also matching। reset and then again start, so E, so EJT, so 3 factorial। E के बाद आ जाएगा J, not matching, EET, so 3 factorial by 2 factorial। next II, फिर आ जाएगा J के बाद T, मैच कर गया, then E not matching, so EJ, so 2 factorial, then IIT J, IIT EE, so कितना आंसर आ रहा है? बोलो टोटल कितना हो रहा है? फर्स्ट आया 60, देन 95। यस कितना हो रहा है? 84 प्लस 6 90 96 हो रहा है ना? यस सर। सर मतलब वो लास्ट जब IIT JEE लिखते हैं वो +1 करेंगे? हाँ, दैट इज द पोजीशन ना। कोई यदि स्टार्टिंग में ही आ गया तो उसका रैंक क्या होगा? रैंक 1 हो जाएगा। यस सर। पोजीशन काउंट होगी, यहाँ पर वो आ रहा है वो पोजीशन काउंट होगी। सो दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 18, रैंक ऑफ द वर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 19, दैट इज नॉट रैंक ऑफ द वर्ड, लेकिन बनेगा इसी तरह से। सो यस, ये है हमारा वर्ड अगेन। अगेन सेम, एवरीथिंग इज सेम, डिक्शनरी बनाया गया है। अभी तक हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का रैंक बताते थे, अभी क्या करना है? अभी अपोजिट,
अभी 50th रैंक पे कौन सा वर्ड है ये हमें बताना है। पोजीशन इज 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। प्रॉब्लम क्लियर। अभी तक हम लोग वर्ड का रैंक बताते थे, अभी एक रैंक निकाला है 50th। व्हाट इज द वर्ड एट 50th रैंक, ये हमें बताना है। आइए स्टार्ट करेंगे, सेम प्रोसेस। AAGIN, ओके, AAGIN जैसे डिक्शनरी में आता है लिख दिया। नाउ प्लीज टेल मी हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड विद द लेटर A। हाउ मेनी वर्ड्स? 4 factorial. Yes, 4 factorial, that means 24. अब A के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा G. Please tell me how many words with the letter G? 4 factorial by 2 factorial. Yes. 2 factorial. AAIN. So 4 factorial by 2 factorial, that means 12. So अभी काउंट करते जाना, ठीक है। पहले 24 थे, अब 12 और ऐड हो गया, मतलब वी आर एट 36। जाना कहाँ है? 50. 36 पहुंच गए। अब G के बाद I, so AAGN, again 4 factorial by 2 factorial, 12 more, that means we have reached 48। और मैंने बताया था 48 रीच हो गया है, अब 2 more, राइट, मैनुअली। I के बाद which letter will come? So I के बाद N will come, so write down N। अब नेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे, रीसेट कीजिए, रीसेट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन से ऑर्डर में आएगा? राइट डाउन इन द ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लिख दीजिए। AAGI, विच पोजीशन? AAGI, which position is this? 49th position. 49. 49th पोजीशन। अब हमें एक और स्टेप आगे जाना है। रिकॉल कीजिए मैंने क्या बताया था, एक स्टेप और आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं? यस, एक स्टेप और आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, GI को इंटरचेंज कर देंगे IG। यस, दैट्स इट। लास्ट के 2 लेटर्स को इंटरचेंज कर देंगे। दिस विल बी आवर 50th वर्ड, NAAIG। दैट इज द आंसर। विच लेटर इज एट 50th पोजीशन? इट इज NAAIG। दैट इज एट 50th position in this dictionary, particular dictionary. Okay, that was problem number 19 और हमारे पास around 7 minutes time है, so let's finish problem number 20 and 21. That will be the end of permutation. So here is problem number 20. Go through this. Problem number 20. In how many ways 3 prizes be distributed among 4 boys when no boy gets more than 1 prize? प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है among boys या फिर among boys प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या लगता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? यस, फर्स्ट वन। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आपको प्राइज पे फोकस करना है। 3 prizes be distributed, आप बनाएंगे 3 boxes।
आप बनाएंगे 3 boxes. Now first prize, these are prize, 3 prizes. अब आप फर्स्ट प्राइज के लिए कितने ऑप्शंस हैं? तो फर्स्ट प्राइज के लिए 4 ऑप्शन हैं, 4 boys. So first prize has 4 options. Now it is written no boy gets more than 1 prize. That means आप इसको correlate कर सकते हो, repetition is not allowed. So repetition is not allowed. That means next prize has 3 options and next prize has 2 options. 4 into 3 into 2, answer is 24. So first bit answer is 24. Second bit, a boy may get any number of prize. क्या आंसर होगा? Sir, 4 cube 64. Yes, 54. no restriction. इसको आप कंपेयर कर सकते हो. Repetition is allowed. So each box has 4 options. Each prize can go to 4 boys. So 4 cube, that is 64. ये थर्ड बिट थोड़ा अलग बात कर रहा है. क्या बोल रहा है ये? No boy gets all the prize. No boy gets all the prize. Yes, please tell me. One boy gets all the prize. It can happen in how many ways? One boy gets all the prize. It can happen in how many ways? Sir, 4 ways. It can happen in 4 ways. क्योंकि हमारे पास 4 boys हैं. Boy 1, boy 2, boy 3, boy 4. It may happen boy 1 gets all the prize, or boy 2 gets all the prize, or boy 3 gets all the prize, or boy 4 gets all the prize. So it may happen in 4 ways. So ये नहीं होना चाहिए. तो आप क्या करोगे? No boy gets all the prize. So आप simply 64 minus 4, आंसर 60. था 64 minus 4, answer is 60. Is it clear?